ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਸ਼ਲੋਮ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਗੂਏ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਫਿਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਸੀਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਜਦ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸੋਚਣਾ, ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਚਨ ਦੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਜਸਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੀ ਖਰਚੇ? ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੂ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਆ,
साडा जाना आना है, लेकिन ये खुदा दी की है, हजूरी है। हालेलुया। फील तो अच्छा नहीं होएगा गल, है ना, नहीं फील होंदा ना, क्योंकि मैं पहला एक पॉइंट तुहानूं समझाया ही कि जदों भी कदी एक्चुअली असीं सब इकट्ठे काहदे लई होए, असीं सिੱਖਣ ਲਈ इकट्ठे होए हैं, सिर्फ और सिर्फ सिੱਖਣ ਲਈ। तो जानते बाइबल दे विच एक वचन लिखिया तिमोथियस दी बुक च, एक समा आएगा जदों लोग परमेश्वर दियां ओ गल्लां जिहड़ियां राइट ने, जिहड़ियां खरियां ने, जिहड़ियां जीवन देंदियां ने, उन्हां नूं सुनना पसंद नहीं करनगे। वो पसंद करनगे जो उन्हां नूं चंगा लगदा है। पर जो सानू चंगा लगदा, जो साडे मन नूं चंगा लगदा, कि वो सानू जीवन देगा, कि सानू वो परफेक्ट करेगा, कि साडे जीवन विच सब तो अच्छे फलां नूं प्रगट करेगा जो सानू अच्छा लगदा है। नहीं तो असी डॉक्टर को जाते हैं और डॉक्टर नूं बोलदे अपना हालात बीमारी, फिर वो टैबलेट्स दिंदा तरह तरह दियां लाल पीलियां चिट्टियां गोलियां। आपां डॉक्टर नूं कहंदे भी देखो डॉक्टर साहब आह वाली गोली जिहड़ी लाल है ना, ये थोड़ी वड्डी है, आ हरी वाली भी थोड़ी सही नहीं है, तो इन्हां नूं बदलो, छोटियां दो, जिद्दां साडा हिसाब है उदां दो। कहदा पॉसीबल है? बोलो सारे, नहीं पॉसीबल ना। असी चुप चुप करके उन्होंने खाने क्योंकि साडी उत्थे बुद्धि काम करदी है कि इहदे विच ही साडा की है भला है। हालेलुया। इसी गल नूं अज असी समझना सारिਆਂ नूं, एक्चुअली बाइबल दे अंदर जो खुदा दा कलाम है उस नूं ये गाइड करदा कि असी करना की है। मैं समझदा जिवें इस दुनिया दे अंदर एक मनुष्य जदों उन्होंने सही चीज़ां नहीं पता, जिवें आपां रस्ता ही पुछना है ना, तो सानू नहीं पता रास्ता किधर नूं जाना, जो साडे को एड्रैस जिथे असीं जाना, तो जदों असीं वो एड्रैस जिहड़ा साडे कोल आ, कई बारी सानू रस्ते नहीं पता, सानू मोड़ नहीं पता, असीं दूसरिਆਂ नूं पुछदे हैं। दूसरिਆਂ नूं क्यों पुछदे हैं? ताकि असीं सही जा सकीए, सही, हालेलुया, की कर सकीए, सही जा सकीए, सही अपनी मंजिल ते पहुंच सकीए। हालेलुया। कि तुसी सब चीज़ों को फड़न लई तैयार जे? अज मैनू थोड़ी जी पता नहीं क्यों मुश्किल हो रही है पंजाबी च अज, क्योंकि आदत पै गई काफ़ी लॉन्ग टाइम तो हिंदी च प्रचार करने दी। मे भी चलेगा पक्का? ठीक है, आमेन। तो मैं ये समझता हूँ, आप इस बातों पर ध्यान दो अभी गहरा वाला, कि आज हम सब जो इकट्ठे हुए यहाँ पर, उसका एक बड़ा ही खास मीनिंग है यहाँ पर। वो खास मीनिंग है कि प्रभु मेरे से क्या बात करना चाहता है। आप जब मीटिंग में आते हैं तो आपके अंदर एक प्रार्थना चाहिए, प्रभु आज मुझे वो सिखाना, प्रभु आज मुझे वो बातें चाहिए, आज वो तेरा कलाम चाहिए जो मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा लाभ है। हो सकता है मैं मनुष्य हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना राइट, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ, लेकिन आपको पता है। आप अपने दास को यूज़ करना परमेश्वर। तो आप लोग अगर इस प्रार्थना से आओगे, इस प्रार्थना से, तो याद रखना परमेश्वर आपसे बात करेगा, समझाएगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और उसी बात से अभी भी मैं खुदा का दास हूँ, आज भी ये मेरी प्रार्थना है, आज भी मैं ये परमेश्वर के सामने रोज रखता हूँ, रोज डेली के परमेश्वर, हो सकता मैं कहीं गलत हूँ, हो सकता कई बातों में आगे पीछे हूँ, हो सकता मेरी बुद्धि के हिसाब से मुझे लग रहा हूँ मैं राइट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हो सकता मैं कई बातों से आगे पीछे हूँ, लेकिन आप मुझे बुद्धि दो, आप मुझे समझ दो, आप ऐसे मुझे गाइड करो, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से आप मुझे डायरेक्शन दो, अंडरस्टैंड कराओ, ताकि मैं सही आपकी इच्छा में चल सकूं। हालेलुया। आज भी खुदा का दास होने के नाते अब सोचने वाली बात है, अगर मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं तो इसका क्या कारण है? इसका कारण बड़ा ही साफ साफ समझ आता है। हम सब किसको खुश करने के लिए यहाँ बैठे हैं, किसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बैठे। देखो एक सिंपल बात है, जो कुछ प्रभु से हमें चाहिए, जो कुछ हमारे जीवन के लिए है, जो प्रभु से हमने पाना है, कितनों को बात समझ आती है? वो हमारे लिए बड़ा खास है। हालेलुया। आप बाइबल में पढ़ोगे ना, शरीर और आत्मा दो तरह का जीवन, रोमियो 8 अध्याय में,
उसको पढ़ना, मैं उस वर्ड को इतना अपने जीवन में रखता हूं, इतना उस वचन को सामने रखता हूं ताकि मैं सही डायरेक्शन में चल सकूं। आप रोमियो 8 अध्याय पढ़ते हो कंटिन्यू, बीच में वहां क्या लिखा हुआ है कि यहाँ कभी कभी या बस जो सुन लिया वही थोड़ा बहुत, कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मुझे समझ आती है जब मैं फॉरेन के अलग अलग देशों में जाता हूँ, लोग कहते हैं टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता, ऐसा बड़ा बोलती। टाइम है, हालेलुया, क्योंकि वही टाइम हमें सफल करेगा, वही टाइम हमारे घराने को बचाएगा, वही टाइम से हमारी जिंदगियां खास होंगी, हालेलुया। तो रोमियो 8 अध्याय में क्या है? वहां पर परमेश्वर ने कहा जो शारीरिक व्यक्तियों कभी परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकता, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग करके, स्ट्रिक्ट करके बात लिखी है, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हमें वो सुनना चाहिए जो परमेश्वर कहता है, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य वो सुनना चाहता है जो उसका दिल करता है। कितनों को बात समझ आई? आत्मा की बातें सुनना कठिन बात है। आप जानते हो कुरिन्थियों में लिखा कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो क्या है? मूर्खता की बातें, हालेलुया। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें क्यों ग्रहण नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी दृष्टि में वो सही से उसको समझ नहीं आती क्या है। अब हम बाइबल में जब देखते हैं एलिया के बहुत सारे चेले, लेकिन वो चेले वो क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि वो शरीर में थे। वो शरीर में थे तो जो एलिया था वो सही था, दीन था, नम्र था, अपने अगुए की बात मानता था। इसीलिए जो मस्सा, जो उसके अंदर आत्मा काम करता था एलिया के, उसका दुगना भाग किसको मिल गया? एलिशा को मिल गया, हालेलुया। बाकी चेलों को क्यों नहीं मिला? चेले तो उसके और भी थे, लेकिन उसके बाद, हालेलुया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलिशा एक भविष्यवक्ता बनता है, जबरदस्त वाला। उसके भी चेले बनते, उसका भी एक चेला होता गेजी। अब सोचने वाली बात है, सुनो ध्यान से, क्या गेजी परमेश्वर को नहीं जानता था? जानता था। क्या तुम लोग परमेश्वर को नहीं जानते? जानते हो। मैं भी परमेश्वर को जानता हूं, हम भी उसके लॉ जानते हैं। हमें पता है परमेश्वर ये मना करता है, ये मना करता है, ये मना करता है, लेकिन जो वो मना करता है वही तो जीवन है। लेकिन जो वो मना करता है हम उसको नहीं मानते। परमेश्वर के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मैं देखता हूं। अभी मैं इन देशों में आकर प्रेयर कर रहा हूं वेस्टर्न लोगों के लिए, क्योंकि ये डिजायर मेरे अंदर 5-6 साल पहले थी, वेस्टर्न लोगों में काम करने का, गोरे लोगों में काम करने का। क्योंकि जब मैं पहले गोरों से नफरत करता था, जब मैं यीशु में नहीं था, कई सारे इंसिडेंट के कारण, कई सारे विषयों के कारण, लेकिन जब मुझे समझ आया कि ये लोग तो खुद सुसमाचार के द्वारा बचाएंगे सारी। हम सोचते थे ये गोरों का परमेश्वर है यीशु, लेकिन ये भी सुसमाचार इन्हें मिला। इन सब ये जो पूरा यूरोप है, यहाँ पूरा प्रेरित पॉल ने बदल दिया इसे। मैं कब था? वेडनेसडे, ट्यूसडे मैं वहां था ग्रीस में। मैं वहां गया, अरियुबगुस पहाड़ी के ऊपर सामने एक पहाड़ी थी बड़ी, जिसमें अदीना देवी का मंदिर था। वो सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड की। जब मैं वो सारी चीजों को देख रहा था, मैं फील कर रहा था, एक बंदा पौलुस हमारे जैसा ये पूरे नगर को बदल देता है। वो भी तो हमारे जैसा था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसने शादी भी नहीं की। क्यों? उसने अपना पूरा जीवन किसको दे दिया? अरे उसका जीवन से मैं समझ आती है, पौलुस के जीवन से, कि उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, पैसों से, ये चीजें उसके पास ऑलरेडी घराने से वो अच्छा था, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन खुदा को दे दिया एक बड़े कार्य के लिए, कि जो मनुष्य पृथ्वी के ऊपर नाश हो जाएगा अगर वो उसका रूह नहीं बचाया जाएगा, अगर उसे ये नहीं समझ आएगा कि खुदा कौन है, मुझे ये शरीर क्यों दिया गया, ये बॉडी मेरे पास क्यों है, उसने मुझे मनुष्य ही जीवन दिया क्यों है, इसका क्या कारण है। अगर एक व्यक्ति को पता नहीं चलेगा तो वो इस दुनिया में नाश हो जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, हालेलुया।
आप कितना टाइम मेरे साथ आज हो, बता सकते हैं कुछ? पूरा दिन तो निकल गया, अब शाम हो गई है। क्या हो गई है? शाम तक कितना टाइम मेरे साथ हो आप लोग? कोई आंसर नहीं आ रहा। ऐसे ही है, चले कम लंबा पक्का तो भर जाओगे आत्मा से, यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी में खुदा कुछ बड़े काम करेगा। फिर आज देखो, मेरे पास कुछ दान वरदान है प्रभु के, वो क्यों मुझे मिले ये तो मैं बाद में बताऊंगा अगर अगुवाई आई तो। लेकिन वापस आते एक उदाहरण पर। हम मनुष्य दो तरह का है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। हम जानते हैं शरीर को जिंदा रखने के लिए रोज रोटी चाहिए, फूड मटेरियल खाना। अगर हमारा खाना बासी खराब मिलावटी या पॉइजन मिक्स है, ऐसा खाना खाओगे तो क्या होगा बताओ आप लोग? सिर्फ इन्फेक्शन होगी या प्रॉब्लम होगी, या खबरों में सुनते वहां पर जहरीला खाना खाने से इतने लोग मर गए, ऐसे सुनते खबरें कि नहीं सुनते? अगर जहरीला खाना खाएंगे तो ये शरीर डेथ कर जाएगा। कितनों को बात समझ आती? बहुत सारी बीमारियों का कारण क्या है? लोगों का खाना सही नहीं है, इसीलिए बहुत सारी बीमारियां हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, शरीर का खाना सही नहीं है, खराब है, मिलावटी है, पॉइजन मिक्स है, जहरीला है, शरीर डेथ करेगा लेकिन आत्मा बाहर आ जाएगा। आप जानते हो आत्मा की रोटी क्या है? आत्मा की रोटी है धार्मिकता, परमेश्वर की राइचियसनेस, परमेश्वर की भक्ति। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो इस दुनिया में ये एक रुमाल है, लेकिन उदाहरण के रूप में यूज करता हूं। ये एक गॉड है, एक भगवान है दुनिया में, कोई भी एक। ये व्यक्ति एक व्यक्ति है, ये मेरा हाथ एक व्यक्ति है। ये किसी भी जात पात में पैदा हुआ, इसने वहां से सीखा कि ये गॉड है, ये एक भगवान है, ठीक है। लेकिन ये अपने पुरखाओं से, अपने समाज से ये सीख गया, इसके दिल दिमाग में ये बात बैठ गई। लेकिन ये से गॉड समझकर, भगवान समझकर पूजा करता, पर ये गॉड नहीं था। इसके आत्मा का क्या होगा? बोलो बोलो, आत्मा का क्या होगा? नाश हो जाएगा। इट्स डेंजरस मैटर, सीरियस विषय है ये। लेकिन हम लोग, जैसे मैं पंजाब में देखता हूं, इंडिया में हम प्रार्थना करते हैं, कोई बहन कहती है आ मेरी कुड़ी लिए प्रार्थना करो। मैं पूछता किस चीज के लिए? कहती है इसको ना PR मिलनी चाहिए अमेरिका की, ये वहां है। अच्छा, इसको ना ये बड़ी जॉब मिलनी चाहिए। अच्छा, तो मैं पूछता हूँ ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये विश्वास करते? नहीं 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 नहीं, विश्वास नहीं करते। तो मैं उनसे पूछता हूँ फिर आपको पता अगर ये विश्वास नहीं करेंगे तो इनके साथ क्या होगा? नहीं बच्चे है जी, बच्चे अपनी मर्जी करते हैं जी, उन्हों का जीवन उन्होंने नाल, मैं आनी हाँ, मैं तो आनी हाँ, ऐसा बोलते लोग। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया आपको? वो कहती मैं आनी हाँ बाबा जी तेरे जरा पवड़िया है, मैं बाबा जी आनी हाजरी लवान। कितनों को बात समझ आती है? लोगों को ये समझ ही नहीं है कि हम कहां आए हैं, क्या करने आए हैं। लोगों को लगता है ये परमेश्वर जो है ना, यीशु, ये फायदे की चीज है, ये ठीक करता, चंगाइयां करता, वीजे बड़े लांदा है, ऐ बड़े काम करता है। कितने गल समझ आ रही है? लोगों के दिमाग में ये फायदे की चीज है, असल वाला विषय ही नहीं है। असल वाला उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या है ये परमेश्वर का किंगडम। क्यों यीशु इतना दुख सहा? क्यों उसने स्वर्ग छोड़ा? क्यों वो मनुष्य बना? क्यों लोगों ने उसकी दाढ़ी नोची, मुंह पर थूक दिया? इवन के लोगों ने उसे कहा, अब यूहन्ना का एक वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, उसने, उन लोगों ने यीशु को कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। मतलब यीशु को ये ब्लेम लगा, तेरी मां जब उसका कोई पति नहीं था तो तुझे कहां से पैदा कर दिया? ऐसे गंदे ब्लेम यीशु मसीह के सामने लगाए, मिट्टी के कान इंसानों ने। लेकिन यीशु शांत रहा, वो जानता था इनको तो कुछ पता नहीं। कितनों को बात समझ आती है? मिट्टी के कान छोटे छोटे उसको ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन सोचो, इतनी जिल्लत से ही उसने इतना दुख सहा, किसके लिए? क्यों क्रॉस पर चढ़ा? हम बड़ी छोटी बात करते हैं, हाँ जी साढ़े पाप दे ले जी, साढ़े पापा दे ले जी। ये सिर्फ इतनी बात लोग बोलते। मैंने इनको डीपली लोगों के मन को चेक किया है दुनिया में। मैंने लोगों को चेक किया है, ये जो बोलते पाप के लिए, इस बात के लिए,
मैंने सोचा इनके साथ बैठूं, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट सेवा करता हूं। मेरे सेवा करने के तरीके वीआईपी तरीके से नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? जब मेरा खुदा यीशु वीआईपी नहीं बना तो मैं भी वीआईपी नहीं हूं। हालेलुया। उसने मुझे काम देकर कहा, पके खेत बहुत थोड़े हैं और मजदूर थोड़े हैं। यीशु ने यह शब्द यूज किया, मजदूर थोड़े हैं। खुदा का काम करने के लिए मजदूर चाहिए, मैं उसका मजदूर हूं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। ये वीआईपी सिस्टम नहीं है, ये खुदा का मैं मजदूर हूं, उसकी खेती को काट कर सेव करने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम यहां बैठे, मैं बीच में कई सारे टॉपिक शुरू करके वहां स्टॉप करते जा रहा हूं और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं बीच बीच में, ठीक है? लेकिन मैं वापस आता हूं उन बातों पर फिर, ताकि हमें समझ आ जाए वो सारे पॉइंट जो हम सीख रहे हैं यहां पर, ताकि हमारी जिंदगी का असल मकसद आज पूरा हो यहां पर, कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है, उसने हमें चुना क्यों है। उसने चुना इसलिए है ताकि हम अब जो शैतान के ब्लड से, बाइबल कहती हम शैतान की संतान थे, क्योंकि आदम और उसकी वाइफ ने क्या किया, शैतान की इच्छा को पूरा करके अपने आप को श्रापित किया। और बाइबल कहती है उनके ब्लड में क्या है, पाप। वो पाप जो है वो शैतान की चीज है। उस पाप से हम सब पैदा हो गए। किसे पैदा हुए? ये एक खतरनाक विषय है हमारी जिंदगी में, पाप से पैदा होना। लेकिन लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि लोग मोटा मोटा बात करते, मोटा, ठीक है? लेकिन यीशु मसीह उसी शैतान की संतान जो हम थे डीएनए की वजह से, उससे खत्म करने आया, ताकि फिर से मनुष्य किसकी संतान बने। जब हम यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत जबरदस्त ज्ञान है, जो से अच्छे से अगर हम समझते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय वहां पर लिखा, थोड़ा सा पढ़कर समझाता हूं मैं आपको, ठीक है? थोड़ा सा यूहन्ना की बुक से, ताकि ये बात हमें समझ आए अच्छे से। हालेलुया। ऊंचा बोलोगे हालेलुया? हाँ, यहां पर ऐसे लिखा 9 में 1 की 9 में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे तो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हम जब ये देखते हैं यीशु मसीह का क्रूसीफाई, ये पावरफुल काम, इतना दुख सहना, ये इसे हम कहते हैं नया जन्म। एक शारीरिक व्यक्ति, इधर देखो, एक शारीरिक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने टाइम वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि आज मेरा नया जन्म हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप चेक करना, कई लोगों को जो भी बपतिस्मा लेते हैं, जब वो बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद कई लोग फिर वैसे ही होते हैं, सेम जैसे पहले थे। कितनों को बात समझ आती? वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन, वही अजीब जो पहले शरीर था, पहले बुद्धि थी, पहले समय थी। सिर्फ नया क्या है कि पहले हम कोई और धार्मिकता करते थे, अब हम यीशु में चलते हैं। बस ये है, बस एक अलग, बाकी चीजें तो वही है, वही शरीर है, वही स्वभाव है, वही गुस्सा है, वही चालाकी है, वही चुस्तपन, वही क्लेवरपन। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन नया जन्म क्या होता है? नया जन्म तो एकदम से यीशु जैसा बाइबल कहती है, यीशु जैसा। और जानते वो यीशु जैसा जीवन किससे होता है? हॉली स्पिरिट से। बाइबल तो नया जन्म कहती है पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को। कितनों को बात समझ आती है? जो आत्मा से भरा हुआ है वो एक नया जन्म जिएगा। अगर वो आत्मा से नहीं चलता, जैसे लिखा हुआ ज्ञान में, बाइबल में लिखा, जितने उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे बेटियां हैं।
बाइबल में लिखा है एक जगह पर, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन्म भी नहीं। कितनों ने ये वचन पढ़ा है? जिसके अंदर उसका आत्मा नहीं वो उसका जन्म भी नहीं। इसका क्या मीनिंग है? हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आज तुम चाहते हैं आज प्रभु आपको छुए? आप चाहते हो आज आपका कोई रोग जो है आपके शरीर में वो चला जाए? कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, सारे बीमार आए हैं? देख लो। हालेलुया। हाँ, मैं भी बीमार हूं, बोलो, पर मैं उसका बीमार हूं आत्मिक चीजों का। हालेलुया। मुझे आत्मिक चीजों की ट्रीटमेंट चाहिए, आत्मिक चीजों का ट्रीटमेंट, ताकि मैं उसकी इच्छा में जबरदस्त बढ़ सकूं। लेकिन रियलिटी में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज निश्चय मेरी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग हील होंगे। वो लोग जो मन फिरा रहे होंगे, जो इन बातों को सुनकर कुछ अपने अंदर ध्यान दे रहे होंगे, हाँ मुझे जरूरत है, हाँ मुझे ये करना चाहिए। अब ये देखो, आप सुनो यीशु की वो कुर्बानी, यीशु का वो दुख। हम जब वो फिल्म देखते हैं पैशन ऑफ द क्राइस्ट, तो उसमें दिखाया उसका दुख कितना भयानक था। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को जो उन्होंने दर्द दिया, वो दर्द उसकी अपनी सजा थोड़ी थी, अपना थोड़ी गुनाह था, वो तो हमारा गुनाह था। लेकिन ये बातें हम कितनी समझते हैं, इन बातों पर कितना हम ध्यान देते हैं। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह का ये सारा कुछ करना था ताकि वो पुराना जीवन जो शैतान से आया था। अभी मैं था बारी में अपने रिलेटिव्स के साथ, इटली बारी में। तो वहां साथ में एक छोटा सा नगर पड़ता है, मतलब छोटा नहीं बड़ा ही है, अल्तामूरा, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी दाढ़ी कटवानी थी, तो ये मुझे ले गए उस बंदे के पास जो पंजाबी नहीं था, वो इटालियन था, ठीक है। इन्होंने उसको बताया कि ये पास्टर है। तो अब वो पता क्या कह रहा, अच्छा जो स्वर्ग जाएगा, मखौल कर रहा था। वो क्या कर रहा था? सोच लो, इटालियन, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, छोटा मोटा चर्च जल जाते कि हमारा धर्म है ऐसा करके। धार्मिकता क्या है, रिश्ता क्या है, वो ड्राई हो चुके लोग। इसीलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और देखना, दुनिया में अगर ये 9 साल की सेवा है, मैंने अपनी सेवा की बात बीच में स्टॉप कर दी, उसके बाद क्या होता है, सुनो, वापस आता हूं इसी, वापस वो टॉपिक बीच में रह गया। जैसे वो ओवरफ्लो हो जाती है 30 मरले जगह, फ्रंट में एक भाई की जगह थी, फ्रंट के ऊपर 8 मरले, उनको कोई चूल मारता है, पंजाबी कहते हैं, समझे ना, फूक मारता है या चुगली मारता है, ताड़ी ये ना नप लेनी जगह, धार्मिक स्थान कितना चढ़ाओगे। वो कहते, उनका एक लड़का थोड़ा चट्टा बेचता था, खराब बंदा था, लड़ाका बड़ा था, वो आगा ये है, वो कहता मैंने कंध करनी। मैं कहा कर ला भाई, कर ला, हमने मना थोड़ी किया, तेरी जगह है। वो बड़ी 4-4 फुट 5 फुट नीवी थी, इतनी मिट्टी डाली, कहता मिट्टी के पैसे दे। मैं ठीक है भाई, तो अपनी दीवार कर। जैसे दीवार होती है तो एक 4 फुट की गली के पीछे रास्ता रह जाता हमारा चर्च का, 8 मरले सारी वो कवर कर लेते हैं। मैं उसे कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ धन्यवाद देता हूं, नहीं प्रभु ये तेरे बच्चे हैं, इनका भलाई करना। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद मैं लोगों को बोलता हूं हमने अपनी जगह लेनी है। कितनी लेनी है? अपनी 1 एकड़ जमीन लेनी है। तो आप सब लोग लोग दिल के अच्छे थे मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ था, मन खोलने वाला वो था। जैसे आज ये मीटिंग की, अभी स्वरूप लाल से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था कि पापा जी कई लोगों ने तो किसी ने 100 किसी ने 200 ऐसे डाले हैं पैसे, तो अगर जितने कम पड़ेंगे मैं प्रभु का बच्चा मैं सब तो वध करूंगा। मैं कहा ये तो दिल थे मेरे वर्गा है, ऐसे ही मेरा दिल था। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे वो बोल रहा था। लेकिन जो सब कुछ इन लोगों ने किया है, ये प्रभु के लिए किया है, प्रभु इससे खुश हुआ है। आज प्रभु कुछ चाहता था आपकी जिंदगी में बोना, अपने ज्ञान को, अपने वचन को। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद जब वो हमारे पास कम से कम 38 लाख इकट्ठा हो जाता है 2 महीनों के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके पास ही एक जगह थी, 1 एकड़ जमीन, जहां हम संगति कर रहे थे। उस मेन रोड से एक रोड निकलता था, सिर्फ 20 फुट रोड, 20 फुट चौड़ा रोड, जो हमारी चर्च की ओर आता था।
और उसी रोड के साथ साथ एक कनाल था छोटा, सूआ जिन्हों पंजाबी च बोलते आपा, उसी के पटड़ी पर पक्का रोड था, लेकिन वो सिर्फ 20 फुट था। और उसके ऊपर 1 एकड़ जमीन मिली हमें 54 लाख की। मैंने 50,000 उनको वो दे दी साई। और उसके बाद मैं प्रेयर कर रहा था। मैं कोई भी काम करने से पहले प्रेयर करता हूं, और जब मैं प्रेयर कर रहा था तो प्रभु ने मेरा मन खोला और मुझे कहा कि ये रास्ते को चेक कर। मैंने कहा प्रभु ने ऐसे क्यों कहा? मैं सोचने लगा, प्रभु ने मेरे अंदर डाला कि ये रास्ता छोटा है जिस पर आप जगह ले रहे हो 20 फुट। मैंने दूसरी तरफ से चेक किया, उनसे पूछा भी दूसरी तरफ से कौन सा रोड आता है, उधर से भी 20 फुट आता था। मैंने सोचा एक दिन तो चर्च में लाखों लोग आने, तो ये तो 20 फुट बहुत छोटा रास्ता है। गालियां देंगे लोग हमें जब क्राउड लगेगा, जब जाम लग जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? मैंने कहा नहीं, हमने लोगों को तंग नहीं करना, वो हमारे लोग हैं, क्योंकि ये रास्ता छोटा है। मैंने वो 50,000 छोड़ दिया। मैं प्रार्थना करने लगा। हम एक रास्ते से निकलते थे हाईवे रोड के ऊपर, हाईवे रोड था वहां पर। मैं कभी कभी, ये बात तब थी जब मैं कभी कभी जब मैं एवेंजलिज्म करने जाता था, जब मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी, मैं फिर भी जाता था टीम को लेकर अलग अलग जगहों पर। तो वहां पर जब मैं गया तो एक रोड के ऊपर मेरी बड़ी अच्छी जगह लगती थी। मैं कहता था प्रभु धन्यवाद ये दे चुके हो, धन्यवाद ये दे चुके हो। ऐसे मैं बोलकर जाता था गाड़ी रोककर। और जानते हो आज वही चर्च बना हुआ वही, और कितनी जमीन में बना होगा? 10 एकड़ जमीन में, हमारी अपनी पर्सनली जमीन। और जानते हो वहां जमीन अब रेट कितना है? हमने भी सस्ती नहीं ली, 2000 हमने 21 में ली, सस्ती नहीं ली। कोई 1.5 करोड़ का 1 एकड़, कोई 1 करोड़ 70 का, कोई 35 का, कोई 40 का, ऐसे लिया। अब वहां पर हमारे फ्रंट में एक नुक्कड़ में जमीन बची है 3 कनाल, वो 30 करोड़ मांग रहा उसका, 30 करोड़। कितनों को बात समझ? वहां भी 10 करोड़ एकड़ जमीन का रेट हो गया है। वो हाईवे रोड है, जीटी रोड, हाईवे रोड। कितनों को बात समझ आती है? अमृतसर में। और क्या सोचते हो हमने बस यही जमीन ली है? हमने गुरदासपुर भी अपनी जमीन ले ली है, होशियारपुर भी अपनी जमीन ले ली है, मानसावे में अपनी जमीन ले ली, और आगे कई जगह पर हमारी बातें चल रही है। सोचो ये 9 साल में हुआ। किसने किया? क्यों किया? क्या कारण था इसके पीछे? प्रार्थना। प्रभु मैं, हो सकता मैं इंसान हूं, मैं गलत हूं, हो सकता है मैं कई बातों में तुम्हें ठोकर मेरे जीवन से लोगों को लगती हो, या मेरे कारण आपको दुख मिलता हो मेरे जीवन से, मैं जब आगे पीछे रहूं, तो कृपया ही आप मेरे मन को खोलो। एक बार मैं ना अपनी टीम को बड़ा उल्लू करके बात करता था, ठीक है? मुझे गुस्सा आ जाता थोड़ा थोड़ा जब वो सही काम नहीं करते थे। ओ उल्लू ऐसे करके। एक बहन मेरे पास आई, कहते हैं आप उल्लू मत बोला करो, ठीक है? मैंने कहा प्रभु ये तूने कहा मुझे। मैंने उसकी बहुत को प्रभु की बात तरह लिया। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। वो तो एक बिलीवर थी। अरे एक अगुआ किसी की बात को जब सामने आ रही उसे ऐसे लेता है। एक बार की बात है, मैंने रियल में कभी, मैं प्रेयर करता था पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस लोगों के लिए, ये तो सच है, पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी के लिए प्रेयर करता हूं, लेकिन स्पेसिकली मैंने कभी मिनिस्ट्रियों को मुंह में रखकर बात नहीं की परमेश्वर के सामने। ये सच बात है। एक बहन है, एक बच्ची है, ऐसे ही कोई बात हुई, उसने मुझे कहा आप सब अगुओं के लिए, मिनिस्ट्रियों के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा प्रभु ये तूने कहा है। मैंने उस दिन से मिनिस्ट्रियों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? उसने कहा देखना अगर आप ऐसा करोगे ना तो प्रभु उनसे भी ज्यादा आपको बढ़ाएगा, उनसे भी ज्यादा। आप इनके लिए ये मांगो, ये मिनिस्ट्रियां ब्लेस हैं और बढ़ चुकी है, इनकी जिंदगी में और अच्छा हो चुका है, ये और काम करे, बस आप ऐसे बोलो। बस सोच कर देख लो, किसी ने ऐसा शब्द कहा, क्योंकि मेरे मुंह से थोड़ी सी बुराई निकल गई किसी मिनिस्ट्री की, किसी विषय को लेकर। कितनों को बात समझ आती है? तब मुझे खुदा कैसे, मतलब ये पर्दे से बात करेगा? बोलो, खुदा इस पर्दे से बात करेगा? फूल से करेगा? इस मिरर से करेगा? बोलो कैसे करेगा?
किसी के मुंह से करेगा वो बात। वो कभी भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। आज अगर मुझे परमेश्वर यहां लेकर आया है तो वो आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। किससे बात कर रहा है? वो आज आपसे बात कर रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरी जिंदगी बड़ी ट्रांसपेरेंट है। पूछ लेना लोगों को, मैं तो सीधी सीधी बातें करता हूं, सीधी खुली, कोई लुका छिपा बातें नहीं। क्योंकि जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं वो ज्योति है, ज्योति। हालेलुया। वो चानन है, चानन। अब हम अंधकार के नहीं है, हम खुदा के लोग हैं, पवित्र लोग हैं। बाइबल हमें कहती तुम चुना हुआ एक वंश हो, पवित्र लोग हो, समाज, याजकों का समाज हो और मेरी निज प्रजा हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे जो बात कर रहा है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। कितनों को बात समझ आती है? आज हमें जरूरत है ये बात समझने की, वो हमसे क्या बात कर रहा है। मैं लोगों को बोलता हूं ये चंगाई क्या है, ये छोटी मोटी चीज है। बोलो, जब लोग मेरे सामने आते हैं मैं बोलता हूं ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ये बीमारी क्या है, कुछ भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान खुदा बड़ा है, वो तुम्हारी जिंदगी में अभी क्षण पलों में कर सकता है। कई लोग उन बातों को बड़ा सीरियस लेते हैं, फिर हम ऐसे बोलते हैं तो लोग व्हील चेयर से भी खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो आज वो खुदा चाहता है जिसने मुझे यूज किया, जिसके सामने मैं जाता हूं, जिसके सामने मैं अपने जीवन को रखता हूं रोज, कि प्रभु मुझे शायद मैं आगे पीछे हो सकता हूं, प्रभु मेरे अंदर कुछ लालच आ सकता है कई चीजों में। अगर सुनो ध्यान से, शैतान चाहता है, शैतान ने गेजी को पकड़ा, अलीशा के चेले को। अब आप सोचो, अलीशा के बाद भविष्यवक्ता किसने बनना था? गेजी ने, क्योंकि वो उसका चेला था। लेकिन उसके अंदर क्या था? लालच था, चीजों का, पैसों का। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, जब अलीशा को मारने के लिए अराम राजा की सेना आती है, सोचकर देखो सबसे पहले उन्हें कौन देखता है? बोलो, गेजी। और जब देखता तो क्या कहता है? क्योंकि वो भी परमेश्वर को जानता था, उसने भी परमेश्वर की सामर्थ को देखा था। देखा था या नहीं देखा था? उसने भी अलीशा के द्वारा जो हीलिंग हो रही थी वो देखी थी या नहीं देखी थी? जो चमत्कार अलीशा कर रहा था, बड़े बड़े काम कर रहा था, वो उसके साथ रहकर देख रहा था। कितनों को बात समझ आती है? वो जानता था खुदा क्या कर सकता है। लेकिन जैसे उस बड़ी सेना को वो देखता है और क्या करता है, बाइबल कहती चीखे मारता हुआ, डरता हुआ अंदर भागता है, बचाओ बचाओ। अलीशा को डराने की कोशिश कर रहा है। क्यों? आप समझते हो कि नहीं समझते हो? इतना रिएक्ट कर रहा था, अजीब सा चिक्के मार रहा था देखकर मौत को, क्योंकि मौत ही थी वो सेना। लेकिन जैसे अलीशा बाहर आता है, उस सेना को देखता है और क्या कहता है? मत डर, कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसके साथ कनेक्शन है? हालेलुया। किसके साथ कनेक्शन है? आपका कनेक्शन किसके साथ है? बोलो, कहो। कनेक्शन तो साडा पूरा है, पर जिथे साडा दिल करू उत्थे बवांगे ही। तुसी नहीं कुछ कह सकते सानू। कितनों को बात समझ आती है? चाहे मीटिंग आप कर रहे हो, आप अरेंज कर रहे हो, लेकिन हम जो करेंगे जैसा वो सही है। सुनो तो ध्यान से, इन बातों को हमें समझना है। आज ये पॉइंट मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आज खुदावंद आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। वो अपनी सामर्थ्य से आपको भरना चाहता है। वो आपके जीवन में उन कमियों को, उन चीजों को, उन गड़बड़ की बातों को दूर करना चाहता है। क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग तुम बुलाए गए एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़ी जिंदगी के लिए, एक बड़े विषय के लिए बुलाए गए हो। तुम्हें परमेश्वर ने किसी नॉर्मल विषय के लिए नहीं बुलाया है। कितनों को बात समझ आती है? मैं अपनी वो जो रिलेटिव मेरी फैमिली यहां बैठी है, जिनसे हमारा रिश्ता जुड़ा, मेरे बेटे की मंगनी हुई है, उनके 2 बच्चों को मैं बोल रहा था कि सुनो, प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ लिया उसने, अब वो कुछ तुम्हें ऊपर लेकर जाना चाहता है। कितनों को बात समझ आती है? पर वो ये कह रहा करो, ये करो, ये करो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कैरेक्टर्स को देखते हैं बाइबल के अंदर, उन्होंने किया। जब यूसुफ पर इतना अत्याचार हुआ भाइयों से, लोगों से, अब वो भी हमारी तरह कर सकता था, वो भी कर सकता। देखो, परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया,
मेरे भाइयों के ऊपर उसने अपनी सामर्थ्य को नहीं प्रकट किया। उन्होंने मुझे इतना मारा, खड्डे में फेंका, मुझे गड्ढे में फेंका। कितनों को बात समझ आती है? बेच दिया। मैं भाइयों का बेचा हुआ दर दर ठोकरे खा रहा हूं, लोगों की बातें सुन रहा हूं, काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो वचन पूरा कर रहा है। इतने दुख के बाद, अपने लोगों से ठोकर खाने के बाद भी वचन पूरा कर रहा है। जब वो वचन पूरा कर रहा है तो परमेश्वर फिर अनुग्रह कर रहा है। बाइबल में लिखा, जिस हाकिम के पास वो बेचा गया था, उस हाकिम का मन बदला, परमेश्वर ने उसके हाथों में बरकत दे दी, और वो हाकिम ने सब चीजों में उसको सौंप दिया कि सब चीजों पर तेरा अधिकार, उसको ऊंचा करने लगा। लेकिन शैतान ने देखा कि ये तो ऊंचा हो रहा है, इसकी बड़ी गवाही बनेगी, इसका नाम दुनिया में ऊंचा होगा, खुदा का नाम, खुदा की ताकत, खुदा का वजूद इसकी जिंदगी से प्रकट होगा। शैतान ने जब देखा तो उसने एक लेडीज को यूज किया ताकि इससे ठोकर खिलाए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसने कहा, मैं अपने मालिक और यहोवा खुदा के सामने पाप नहीं करूंगा। उसने वचन पूरा किया, और हम जानते हैं आज अगर मेरे मुंह में यूसुफ का नाम है तो उसका कारण, उसका वो लाइफ, उसकी वो जिंदगी, उसका वो विश्वास, उसकी वो वफादारी, उसका वो रिश्ता जो खुदावंद के साथ था। हालेलुया। अब यूसुफ जो था वो कौन सा बड़ा खास था कि हम वो नहीं है? बोलो। उसको 20 भाषाएं आती थी, अलग अलग यूरोप की भाषाएं, ऐसा था? बोलो। या कद का वो 7 फुट था और मैं 5 फुट हूं, ऐसे हम सोचे? भाई वो इतना लंबा था, 20 भाषाएं आती थी उसको। बाइबल में लगा कुछ भी नहीं था, एक आम था, भेड़ बकरियां चराता था। लेकिन उसकी दृष्टि किसकी ओर थी? किसके वचन के ऊपर थी? किसकी आज्ञाओं के ऊपर थी? खुदा की आज्ञाओं के ऊपर। हालेलुया। कितने लोग हम सुबह उठते हैं, धन्यवाद प्रभु, ये दिन तेरा है। आज प्रभु मैं वो ना करूं जो तुझे पसंद नहीं, प्रभु मेरा मन तो खोल चुका, मैं वो कर चुका, तेरी आज्ञा, तेरी नियम, तेरी चीजों को पूरा कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आती है? कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं? कितने लोग इस बात को उसके सामने रखते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा, जो धन परमेश्वर तुम्हें देगा उसमें वो दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया। जो धन हम अपनी कोशिश से लेने की कोशिश करेंगे, कितना ले लोगे अपनी कोशिश से? गुजारा ही कर पाओगे, वो नहीं ले पाओगे जो आपको चाहिए, जो खुदा ने आपके लिए रखा है। उसने इतना रखा है ना धन, अब मैं उसके लिए गवाह हूं। जो मेरी जो मेन चर्च है ना, वो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी बन चुकी है उस हाईवे रोड के ऊपर। कितनों को बात समझ आती है? तो मैं अभी भी बोलता हूं ये तो शुरुआत है छोटी सी। क्या है ये? क्योंकि जिस पर हम फेथ करते, जिसका हम काम करते हैं। जब मैं बाइबल का वो जब सुलेमान भवन बनाने वाला था परमेश्वर का, तो वहां पर जब मैं वो सोना मटेरियल पढ़ रहा था, तो मैं तो ऐसे 2 मिनट के लिए बैठ गया चुप करके। मैं कहा ये मुंती इतनी छोटी को लिखी है, ये कितना था, 60 फीट नहीं, 30 हाथ चौड़ा, 60 हाथ लंबा भवन। कितनों को बात समझ आती है? 60 हाथ तक कितना हाथ था? 90 हाथ था। अब थोड़ी सी गिनती भूल गया मैं, कितना था आपको पता होगा पास्टर जी? याद भूल गया ना? चलो मैं सोच, अभी मेरे दिमाग में आ जाएगा। जो सुलेमान ने भवन बनाया उसकी गिनती मिनती लिखी है ना, 2 मिनट से निकालता हूं मैं, निकाल कर पढ़कर देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं भूल गया उसकी मिनती गिनती, ठीक है? अभी ये था 2 शमूएल, ठीक है? नहीं, 2 इतिहास में भी आता है और शमूएल में भी आता है। 2 जब सुलेमान राजा बना ना, नहीं आता यहाँ 2 इतिहास, ठीक है? वहां से देखता हूं मैं कितना लंबा चौड़ा दिखाया। हाँ जी, 2 दी 5, 2 इतिहास। ये ऐसा है, सुनो इधर देखो ध्यान से।
तो दूसरा इतिहास में वो नहीं है मिनती गिनती। अब मैंने जब पढ़ी थी वो सुलेमान जब राजा बना था तब की बात है, ठीक है। तो सुलेमान राजा कब बना था? पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, ठीक है। अभी 1 मिनट में बस मैं आपको बताता हूं। देखो 60 हाथ लंबा, 30 हाथ चौड़ा, 20 हाथ ऊंचा। मैं यही बोल रहा था पहले आपको, लेकिन मैं भूल गया था कहां लिखा। सुनो इधर देखो ध्यान से, ये देखो 60 हाथ 1.5 फुट को बोलते हैं, ये वाले हाथ को। इसके हिसाब से 90 फीट, कितना? हाँ 1.5 फुट लिखा हुआ है। 90 फीट लंबा, तो चौड़ा कितना था? 30 हाथ। तो 30 हाथ चौड़ा, तो उसका कितना हो गया? लगभग 45 फीट चौड़ा। और ऊंचा कितना? 30 फीट। इधर देखो ध्यान से, ये जो मेजरमेंट लिखी बहुत छोटी सी लिखी है, छोटी सी। कभी आपने गौर नहीं किया होगा इन बातों पर, मैंने जितना गौर किया है। मैंने जब बाइबल को पढ़ा तो इसकी बहुत सारी बातों को गौर किया, ठीक है। ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। जो सोना था ना वो 37,500 क्विंटल था, जो दाऊद ने रखा था भवन बनाने के लिए, उसने अपने बेटे को दिया। चांदी तो लाखों टन थी, पत्थर जो कीमती थे अच्छे वाले, लकड़ियां, लोहा, पीतल, दूसरी चीजें सोच से परे थी। अब इतने बड़े मटेरियल को इतनी छोटी की जगह में यूज करते हैं, बोलो बहुत बड़ी जगह। हालेलुया। कितनी जगह? बहुत बड़ी जगह यूज करने के लिए चाहिए। लेकिन याद रखो, ये इतनी बड़ा सब कुछ जो परमेश्वर ने सुलेमान को दिया, दाऊद को दिया, और सुलेमान ने उसे यूज किया। सोच कर देखो वो खुदा कैसा है, जिसने आसमान, पृथ्वी, हर गैलेक्सी को बनाया, हर चीजों को बनाया, वो हमारा खुदा है। लेकिन कभी कभी हमारा जो शरीर है, शरीर हमारा, जानते वो क्या कर देता है? हमें डंप कर देता, हमें नॉर्मल कर देता। हमारा शरीर के जीवन कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की महानता हमारे जीवन में वो रहती नहीं है। उसके कलाम की वैल्यू, उसकी बातों की वैल्यू, उसका कहे हुए की वैल्यू उस तरह हमारे जीवन में नहीं रहती जब हम शरीर में चले जाते हैं। और इसका एक्सपीरियंस मैंने बहुत बड़ा लोगों की जिंदगी में देखा है कि लोग इस तरह चल रहे बिना आत्मा के, शरीर में बस चढ़ जाते हैं, एक रीति की तरह आए गए और रीति की तरह चले, समझ नहीं आया वो बड़ा खुदा क्या चाहता है। हालेलुया। और वही खुदा आज आपसे बात कर रहा है, और आज वो आपकी जिंदगी में बड़े मिरेकल कर सकता है, वो अपने काम कर सकता है, आपकी जिंदगी को ऊंचा उठा सकता है, आपके हालातों को बदल सकता है। ये तो हम सुन रहे हैं दुनिया में कि हाँ वो कर सकता है, और हो भी रहा है। हीलिंग्स हो भी रही। जब लोग परेशान होते हैं तो बिलीव करते हैं तो लोगों की जिंदगी में काम होते हैं, इसीलिए गवाहियां बढ़ रही, इसीलिए दुनिया में यीशु का नाम बढ़ रहा है। लेकिन वो कुछ और बड़ा करना चाहता है, वो और जबरदस्त करना चाहता है। अब सुनो ध्यान से कि जो खुदा है उसने हमें जो चुना है, तो उसने चुना ही क्यों? वो क्या हमें परीक्षाओं में रखना चाहता है, दुख में रखना चाहता है? एक तरफ हमारी होप है कि हमारे लिए सारा कुछ अच्छा हो, एक तरफ हम सोचते हैं हमारी परीक्षा ले रहा है शायद प्रभु, ऐसा भी हम सोचते हैं। वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता। वो अपने लॉ का पक्का है, वो अपने वादों का पक्का है। हम इतनी चीजें देखते हैं। अभी देखो आपके सामने एक बंदा खड़ा है जो खुदा का दास है, लेकिन याद रखना मैंने अपनी बात बताई, अपनी बात। मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी थी काफी जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन जब मैं सेवा में आया मैंने एक अपना शोरूम बेचा और खुदा के लिए मैंने बोया। और उसके बाद मेरे पास अपनी घर था, प्लाट थे, मेरे पास एक कार थी। जब मैं सेवा में आया मैं और भी ले सकता था कई गाड़ियां, लेकिन 10, 15, 20 लाख की गाड़ी लेना कौन सी बड़ी बात होती है। लेकिन मैं उन दिनों में जब सेवा में था मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने सेवा पर ध्यान दिया। मैं एक ही गाड़ी पर चल रहा था और मैं बढ़ रहा था। मैं उन पैसों को यूज कर रहा था खुदा के काम के लिए। जो भी मेरे पास आते, जो मेरे अपने भी थे, वो भी मैं उसके काम के लिए यूज कर रहा था। मैंने सोचा नहीं, सबसे पहले खुदा, उसका काम। तो देख लो, एक दिन की बात है, मुझे एक बहन ने इनोवा क्रिस्टा ऑटोमेटिक गाड़ी गिफ्ट कर दी। एक बहन ने मुझे, उसका एक बड़ा काम हुआ था। कितनों को बात समझ आती है? ये वो क्यों करती? उसने नहीं की, खुदा ने की।
उसने यूज किया, उसने मन खोला, उसने उसे आशीष किया। जब परमेश्वर ने पोतीफर हाकिम का मन खोला, उससे पहले वो क्यों ऐसा करता? परमेश्वर ने उसका मन उसके तरफ खोला था, उसकी वफादारी को देखकर। परमेश्वर लोगों का, आपके ऑनर का, आपके बिजनेस करने वाले सिस्टम का मन कौन खोल सकता है? खुदा। कितनों को बात समझ आती है? कैसे? जो आज हमने सुना है। आई होप, मैं बिलीव करता हूं कि जो कुछ तुमने सुना है वो अपनी जिंदगी में ग्रहण कर चुके हो। हालेलुया। सीरियस हो गए हो आज? पक्का? नहीं होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। खुदा के साथ तो सीरियस ही होने चाहिए, उसके वचन के साथ सीरियस ही होने चाहिए। जितने लोग ऐसे होते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते अपनी लाइफ में, कभी डाउनफॉल नहीं होता उनका। मैंने अपनी जिंदगी में ना, जब से मैंने सेवा स्टार्ट की है, ना तो मुझे कोई डाउनफॉल लगा, ना मुझे कभी लगा कि ये चीज की कमी, वो चीज। हमने जिन चीजों को हाथ डाला, जिन चीजों के लिए कुछ करना चाहा, सब बातों में सफल होते गए, सफल होते गए। हालेलुया। अभी ये थोड़े दिन पहले हमारे पास जो साउंड इतने सालों से चल रहा था वो गड़बड़ कर रहा था, पुराना हो गया था, तो हमने नया साउंड लेना था। अब नया साउंड तो 70-80 लाख का था। कितने का? अब हमारी मिनिस्ट्री के लिए छोटा साउंड तो नहीं चाहिए था। अब 80 लाख का साउंड था, 90 लाख तकरीबन हो जाएगा। हमने बस शुरू किया, हमारे पास हमने चेक किया ये हमारा बैलेंस है, लेकिन जैसे हमने चेक किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, साउंड भी ले लिया फिर भी बैलेंस पूरा रहा। हालेलुया। उसमें कमी नहीं आई, वो डाउनफॉल हुआ ही नहीं, वो नीचे गया ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मेरे हाथों में इतनी बरकत दे दी परमेश्वर ने कि मैं जिस काम में हाथ लगा रहा हूं वो सोना ही हो रही, वो काम सफल हो रही, क्योंकि वो जीसस के आत्मा से, उसके अनुग्रह से हो रहा है। और ये मेरे लिए क्यों है? ये तो सबके लिए है ना। बोलो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज आप जो सुना है वो आपकी जिंदगी में निश्चय पूरा हो चुका है। खुदा आज आपको छू चुका है। मैं विश्वास करता हूं आज मैं हीलिंग्स देखकर ही जाऊंगा खुदावंत की, आपकी जिंदगी से। जब मैं ग्रीस में था, मैंने एक बहन को बुलाया जो पहली बार आकर बैठी थी, वो एबीसी भी नहीं जानती थी परमेश्वर की, कौन है परमेश्वर, क्या है। वो शायद मैं जो समझा रहा था उसके ऊपर से निकल रहा हो, लेकिन मैंने लोगों को कहा, खासकर क्रिश्चियनों को, वो ठंडे थे वहां लोग। ठंडे ठंडे मतलब इतने गर्म नहीं थे परमेश्वर के साथ। लेकिन एक चीज उनमें थी कि वो सारे ना टाइम से जरूर आगे थे। सच्ची, पता नहीं क्यों। ठंडे थे लेकिन टाइम से आगे। वहां 6 बजे का टाइम था, 7:30 बजे मैं वहां पहुंचा तो तकरीबन वो सब लोग आ चुके थे 7 से पहले पहले। ठीक है। लेकिन वहां मैंने जो वो हीलिंग की तो वो बैंड से चला नहीं जा रहा था। उसने इतनी मोटी बेल्ट बांधी हुई थी, वो उसके रीढ़ की हड्डी के मनके दब गए, नस दब गई, ये टांग में दर्द था और इतना बुरा हाल था कितने टाइम से। लेकिन मैंने कहा, लोगों को कहा, मैं इससे हील करूंगा आपके सामने, देख लो इसे, ये श्वास भी नहीं करती, इसको नहीं पता, आज पहली बार आई है। तो अगर परमेश्वर आप मेरे द्वारा इसे हील कर सकते हो तो जो विश्वास करते हैं उनके लिए तो आसान है। बोलो, क्या है? आसान है कि नहीं आसान है? जैसे एक चीज सोचो आप लोग, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है या अभी बाकी है? कर दिया है। कौन सा काम पूरा कर दिया है? सारा काम पूरा कर दिया। इवन आपके पाप से क्षमा, शैतान आपके ऊपर अधिकार ना रखे, यह भी काम उसने पूरा कर दिया है। और आपके अंदर सामर्थ काम करे, यह भी काम पूरा कर दिया। पवित्र आत्मा का दान आपको मिले, यह भी काम पूरा कर दिया। और चंगाई का काम भी पूरा कर दिया। लेकिन जब यह काम पूरा हो गया है, जैसे मान लो एक बंदे को पता है कि हम चंगाई के लिए विश्वास करेंगे तो चंगाई होगी। ठीक है, इधर देखो, कभी कभी लोगों को यह भी वचन पता है कि यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से लिखा हो तुम चंगे किए गए हो। लोग उस वचन को विश्वास भी करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। क्यों? सोचो, क्यों ठीक नहीं होते? कारण मैंने आज आपको बता दिया सारा। ये जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने आपको बताया, यही वो कारण है। ये कारण ठीक हुआ ना तो 100% वो सारी चीजें, वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन फिर भी आज खुदा मुझे यूज करेगा और आपकी हीलिंग करेगा।
पक्का। कितने लोग ये फेथ करते हैं कि मैं आज जो सुना है प्रभु तेरा वचन, उसके अनुसार अपनी जिंदगी जीऊंगा? कितने लोगों ने ऐसे फील किया है? आज फील किया है अपनी जिंदगी में? किया है फील किसी ने कि नहीं किया है? हाथ खड़ा कर सकते जिन्होंने फील किया है? जिन्होंने फील किया है कि मुझे ऐसा चलना चाहिए खुदा के साथ। अगर हम उसके बच्चे हैं, उसके विश्वासी हैं, तो वो जो कहता है वो करना हमारा उसका आदर है, उसकी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट है जो वो कहता है। लेकिन याद रखना, हम जो हमारा दिल करता है वो करें, जो हमारा दिल, जैसे अभी हम दुनिया में देखते ना, ये जो सब वेस्टर्न लोग हैं, ये इनका दिमाग है कि हमें कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए, हम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहते हैं। ये जो अपने ढंग से जिंदगी जीना चाहते हैं, ये दुष्ट है, ये दुष्ट का वचन है, ये दुष्ट की मर्जी है, शैतान की, और ये नाशित जीवन है। परमेश्वर के साथ चलना भी सब कुछ आनंद है, परमेश्वर के साथ चलना भी आजादी है, लेकिन वो आजादी बड़ी खास है। और जो मनुष्य आजादी चाहता है वो बड़ी आम है, बहुत आम है। जो खुदा के साथ, जो खुदा का वचन कहता है मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, वो तो जबरदस्त आजादी है। हालेलुया, एक जबरदस्त आजादी। तो मैं बिलीव करता हूं इन सब बातों के बाद खुदा आपको छू चुका है, आपके मन को बदल चुका है। अभी मैं एक प्रार्थना करता हूं आपके लिए छोटी सी, जिसमें आपने अपना बीज बोना है, ताकि हम भी अपना योगदान दे सके इस मीटिंग के लिए। और उसके बाद आपकी प्रार्थना होगी और शायद कुछ, है ना? ठीक है, तो अभी आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करता हूं। जीवत परमेश्वर खुदाबंद, ये तेरे पवित्र लोग हैं खुदाबंद। आज इस जगह पर ये ना बैठते अगर आप मन ना खोलते। आज मैं यहां खड़ा हूं कैसे? परमेश्वर, सब तेरा प्लान है परमेश्वर। मैंने कुछ नहीं सोचा मैंने क्या बोलना है परमेश्वर। जो तूने मुझे वचन दिया, मेरे मुंह से आया, मैं धन्यवाद करता हूं। वो तेरा वचन है और इनकी जिंदगी में काम कर चुका है खुदा। आज से इनकी जिंदगी में कुछ बड़ा और खास हो चुका है। आज जितने आशा से आए उनकी आशा पूरी हो चुकी है। अब जो 20 का वचन ये पूरा करने जा रहे खुदा, अपने 20 को बोने जा रहे खुदाबंद, मैं तेरा दास होने के नाते विश्वास करता हूं, मांगता हूं कि इनके हाथों को छुओ, इनके बीज को छुओ। जब ये डालें खुदा, इसका 100 गुना फल काटे। और मैं खुदा का दास उनके नाते परमेश्वर मांगता हूं, इनके परिवारों के ऊपर, इनके कारोबार के ऊपर बरकत को मांगता हूं। ये बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कौन कौन चाहते हैं कि मैं आपका ले हैंड करूं? काफी चाहते हैं, सारे ठीक है। ये पंखे साइड में करो, इधर से निकालो और इधर से भेजते जाओ, ठीक है? कौन सी नस दबी तेरी? सेटिंग दी की विश्वास करके आई ए, देखना थोड़ा की विश्वास करके आई। इधर देखो ध्यान ना, अगर तुसी ये मैं हीलिंग जड़ी कर रहे हो देखोगे तो विश्वास अप हो जाएगा। और जो तू ही सामने आओगे थोड़ी जिंदगी च कौन कम करेगा? हालेलुया। तो ही जानने साड़ा विश्वास वड्डा होना चाहिए। अगर नॉर्मल विश्वास से जितों मर्जी प्रे कर जाओ वो कम विश्वास नहीं करेगा, हीलिंग नहीं आएगी। वैसे तो वरदान भी कम कर देनी ਜਿਹੜੇ ਅਗੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗੂਏ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨॉर्मली ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫੁੱਲੀ ਦਰਦ, लेकिन संगति सुनते सुनते कट गया। अभी कितना है? सच्ची सच्ची दसना, जो भी है 40% रह गया। नहीं 40% हटिया है, 60% है। अच्छा सिर्फ 40 रह गया। देख लो, बैठे बैठे जो मैं सिखा रहा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ 60% चला गया और तुसी उठ बैठ नहीं सकते। बैठते हूँ पर जल्दी बस उठ जाओ। उठा नहीं जाता है, उठने में मुश्किल होती है। जैसे उठती बैठती दर्द कितना होता है? स्वेर होता है। अभी देखना क्या होने वाला है। इसको ऐसे पकड़ो, नहीं आप नहीं कुछ करना, आपने ऐसे हाथ करने। हाँ आप पकड़ो आगे पीछे। यहाँ दर्द कहाँ है? ठीक है, अभी देखो मेरी तरफ, ये जा रहा। अभी कौन हूं मैं? खुदा का दास। यीशु नाम से ये सटिका की नाड़ी खुल जाए,
बंद नाड़ी खुल जाए। छट, खोलता हूं इस नाड़ी को यीशु के जीवित नाम से। चल, छट, फ्री जीसस। ये देखो मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, बोलो मैं चंगी है, हो गया मेरे लिए। उठो बैठो, उठो बैठो, उठो बैठो। अभी इस टांग में इधर करो, जिस दर्दी अच्छी ना करो, उसको कितनी तेज कर रही। ओके, हालेलुया, हालेलुया। जाओ, खुदा ने आज तुम्हारे लिए पूरा कर देता। बोल दो जल्दी जल्दी। पेट च दर्द है, छाती च, प्रभु च कदों दे दुई, कदी चर्च नहीं गए, आज विश्वास कर, तेरा भांजा है, ठीक है, एदा अगों इथों पेट फड़ो, इधर करके अगों पिछे फड़ो, ये तू ही छड़ दो अपने हाथ, अगों पिछे फड़ो। मेरे नाल देखो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਸੁਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ ਅਭੀ ਵੀ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ पेट 'ਚ ਵੀ। चल तेन प्रभु चंगा करन जा रहा है यीशु, ठीक है दर्दी। चलो तो देखो यीशु नाम मेरे तेरा तो ये नवा बंदा है। सुनो इधर देखो, पहली बारी आया पा एक्सपीरियंस देखना अभी प्रभु दा, प्रभु दी ताकत नूं देखदे हैं, ठीक है। यीशु मसीह दे नाम च ये दर्द जाए, अंधकार दा रोग जाए, मेरे देख दर्द जाए, दर्द जाए। इस सारी मादगी, सारा पेट दा दर्द यीशु मसीह दे नाम च खत्म हो जाए। छाती दा दर्द जाए, शट इन द नेम जीसस। ऊपर थले कर, ऊपर थले कर, शट कमांड करदा इस नेगेटिव दर्द, छट फ्री। अब देख चक्कर है पूरा। तारीफ करो यीशु मसीह का नाम, तारीफ करो। देखो पहली बारी बंदा है, पहली बारी क्या, जा जा प्रभु ने तेन छू लिया आज। अभी कितना दर्द हो रहा है, सटिका, सटिका और कमर, सटिका नाड़ी ब्लॉक है। डॉक्टर ने क्या की कहते डॉक्टर, थोड़ा सा पीछे रखना, हल्की नस पे नस चढ़ गई है, ते की करना पड़ेगा तेन कहते, इंजेक्शन लगवाए, हाँ मेडिसिन खाई, फिर भी नहीं काम आया। नहीं जब चलती हूँ तो पेन होता है, रात को अच्छा। सोती हूँ, पूरी दर्द रहती है। सो जाती है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਸੀ, काफी ਹੁਣ है कितना, 80%। 80% अभी भी है पीठ में और इस टांग में। अभी अभी कुछ लोग हील हुए, आप क्या, आप नीचे बैठ नहीं सकते, सीधा ऐसे करके सीधा नहीं बैठ सकते, ऐसे हैं, चौकड़ी मार के भी। आज चमत्कार देखना पक्का, कदों तो यीशु बच्चे पहले बार आए, थोड़ा थोड़ा पकड़ो इसको, आगे पीछे पकड़ो, एक जन ये टांग को पकड़ो, बता दो कहाँ दर्द है, पूरी पूरी पकड़ो, पूरे पट्टी को पकड़ो इसकी, आप इसके ऐसे पकड़ लो आगे पीछे से, पीछे पीठ को और आगे। ये हीलिंग का मेरा अपना आत्मा की चीज है ये, अगर इसको दूसरा करेगा तो आई डोंट नो उसके साथ क्या होगा नहीं होगा। ये माइक है किसी चीज का, अच्छा इससे क्या होगा, इससे नहीं होगा जो हम कर रहे हैं। इधर देखो मेरी तरफ, तुसी इधर फड़ो, हाथ के पेट ते एक पीछे और पिछले हाथ में इधर करना, थोड़ा इधर देखो। ओ सिस्टर, पिछले हाथ में थोड़ा ऐ करिए, हाथ लाइए ना, कर देखो, छट मेरी तरफ देख दो, सारा सटिका दर्द जो नाड़ियां थी तो जो चढ़ी है अपनी जगह जाए, दर्द जाए, 80% जो दर्द जाए, शट 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 इन द नेम जीसस, यीशु नाम, इन जीसस यीशु नाम सारी नेगेटिविटी जाए, शट आउट फ्री इन द नेम जीसस, यीशु नाम दर्द जाए, छट फ्री, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये देखो मेरी तरफ, डरना नहीं, प्रभु आज तुमने चंगा कर रहा पूरा पूरा, ठीक है। पहले थले बैठो, थोड़े पैर खोल के, पैर खोल के बैठो, बैठो बैठो, धन्यवाद धन्यवाद। चलो ऊपर आओ, फिर से मेरी तरफ देखो, यीशु मसीह के नाम च खुदावंद
इस दर्द ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਟਿਕਾ ਦਾ ਰੋਗ ਛੱਡ, ਫ੍ਰੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੋ, ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਮਾਰੋ ਚੌਕੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਚਰਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਚੌਕੜੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ कुछ होया, चौकड़ी लगी ना, पर दर्द हो रहा है ना, अभी जाएगा। देखो मेरी तरफ देखो, खोलो लता, खोलो, उठो। यीशु जिंदा है, बोलो यीशु जिंदा है, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। यीशु मसीह के नाम च खुदावंद सारी दर्द जाए, रीढ़ दी हड्डी दी यीशु नाम च दर्द जाए, यीशु नाम च दर्द जाए। बोलो आमीन, आमीन। ऐसा बोलो प्रभु मेरे दास की प्रार्थना मैंने चंगा कर रही है, प्रार्थना मैंने चंगा कर रही, बोलो मोदो चंगा कर रही है। यीशु नाम च दर्द जाए, शट शट, यीशु नाम च दर्द जाए, फ्री। अब देखो थोड़ा यहाँ चुको, आगे में चुको, इधर चुको, चुको, ठीक है, ऊपर तले जाओ। पीठ में दर्द है, थोड़ी रह गई है, लेकिन इस साइड पूरी है, पूरी 80% जितनी है। देख लो इतो तो मैं की फील करा रहा सारे को, देखो मेरी तरफ इतो फील हो रहा कि कोई भी बंदा जिदा रो गया ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਕਵੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਪਰੈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਾਟ ਨੂੰ, ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਤਾ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋਏ, ਮਾਫ ਹੋਏ। ਫਰੀਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ क्षमा ਕਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੌਖਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਲਕਵੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? तो दोनों चीज सौखी तो नहीं है। बोलो यीशु मसीह तो शब्द की यूज करता है, कहता ना दोनों में सौखा दसो की है, एक कहना तेरे पाप क्षमा है, या एक कहना उठ खड़ा होता अपनी मंजी चुक ते चला जा। समझ आई मेरी गल? तो किसी दी उसे वक्त चिंगाई करना, ओदी बीमारी में दूर करना कोई आसान चीज नहीं है। बोलो लेकिन कौन काम करता? क्योंकि इस युग में जिहड़े लोग नहीं, एक तो ये नवे नहीं, बिलीव नहीं करते, फिर भी मैं तुहाडे सामने हीलिंग करके दिखा रहा, ठीक है। अभी उन्हां दी हीलिंग तो होणगियां बहुत सारियां जिहड़े अज मन फिरा रहे होणगे। तुहाडे मन च हैगा मेरे लिए अज होएगा कि नहीं होएगा? हैगा पक्का, ठीक है। फिर तो पढ़ो अगो पिछो, फिर तो इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जो दबदे दर्द होंदी सोई हुई है, सुन हो गई है ना, ऐसा लग रहा था सारी रात होता पेन होता है। अभी पेन है, स्टार्टिंग दे विच पेन होंदा, फिर नहीं होता। हाँ। मैं 10 किलोमीटर चलना तो वापस आके बैठती है ना, फिर होता होंदा सुन हो जाती है, फिर दर्द बड़ी होती है, मुश्किल बड़ी होती है, ठीक है। अभी परमेश्वर का मशहूर है, देखो मेरी तरफ देखते आओ। यीशु मसीह दे नाम च खुदा थोड़ा थोड़ा लाई जाओ पिछो जिथे इन्हां दी दर्द है नहीं, ओ एक जना लाई है, पट पट के रखो दा, ये देखो शट, इस सारा अंधकार दा दर्द जो भी नाड़ियां च रोग है यीशु नाम च खत्म हो जाए। शट शट द नेम जीसस, यीशु नाम च बोलो प्रभु प्रार्थना मैंने चंगा कर रही है और मैं चंगा होना आज, ऐसा बोलो। यीशु मसीह दे नाम च खुदाबंद दर्द जाए, ये सारा सुन्नापन जाए, जो नाड़ी ते नाड़ियां के डॉक्टर चढ़ी है, यीशु नाम च बीमारी जाए। शट
free in the name of Jesus। चलो अब देखो, अब टंग नु देखो, इधर जोर दी करके देखो, श्वास ना देखो क्या फील कर रहे अभी, कितना 40%। हालेलुया। एक नवे बंदे नु हील करना आसान नहीं है क्योंकि वो लॉ नहीं जानता परमेश्वर दा, लेकिन मैं तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੈਠਦੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਟ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੋ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਨਾਮ 'ਚ ਨਾਮ। ਥੋੜੀ ਗਿਟਾਰ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਛੱਡ ਛੱਡ श्वास कर दे पक्का, प्रभु के सामने करो, प्रभु आज मेरी चंगाई है, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ सारा एड़ियां दा दर्द खत्म हो जाए। ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ शट तेरी सामर्थ नु रिलीज करदा छट। चलो चेक करो, फटाफट करो, डरना नहीं। हाँ कहंदी हाँ ये गया, हालेलुया। जाओ अभी बने रहना, तुम एकदम चमत्कार देखा। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਿਪ लेकिन ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। तो अभी शॉकिंग ਹਾਂ पक्का, ਜੀ ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया। जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बड़ी स्ट्रांग, तो कितने रही ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। सवेर दे आई है, ਹਾਂਜੀ सारा सुनिया। ਸਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ये बड़ी पावरफुल कुड़ी है, सुनो तो देखो, मेरी गवाही दसदा तुहानू। आज ले लिया, इधर देखो, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾੜੀਆਂ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 100% ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦੀ ਹੀ, ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹ 10 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਦ ਲਈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਤੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो। मैं कहा आज तो ये विश्वास कर, तेरे बंधन भी खत्म, शराब भी खत्म। किन्ने नु गल समझ आ रही? टीचिंग बाइबल दा ज्ञान ये बड़ा मायने रखता है। तो मैं बड़े माइनर पॉइंट दस रहा थानू, अजे वो वाले पॉइंट मैं दस ही नहीं रहा जितना कई लोग सोचते भी मैं की हुंदा। एक चीज इन्हां दी गल सुन, इधर देखो मेरी, एकदम सारे जने ध्यान दो। आज साडे को मैं आया ते बड़ा खास विषय है। इधर देखो, एक बंदा चिराग जगांदा मान लो दुनिया च किसी पीर बाबे दे, आपां नूं दसदे आ भी ये इंसान आ, ये परमेश्वर नहीं आ। जिन्हें सूरज बनाया एडा वड्डा, ओनू थोड़ी कोई दीवा चाहिए भाई, आप ओनू समझाउने, पर वो उस ज्ञान च लगा होया। ते जदों ओनू आपां परमेश्वर बारे दसदे भी इदां आ, ओनू चंगा नहीं लगदा शुरू च। बोलो की नहीं लगदा ओनू? क्यों चंगा नहीं लगदा? क्योंकि ओहदे च रम गया हो। इसे तरह प्रभु दे लोग भी कदी कदी कई गल्लां च इदां दे रम जांदे आ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਗੜਬੜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਅਗਵਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਚੋਰ तो इसलिए आया चोरी करन, वड्डन, नाश करन, घात करन, पर मैं इसलिए आया ताकि उन्होंने जीवन मिले, चोखा मिले। ते केड़ा जीवन मिले? बहुतायत दा। हालेलुया हालेलुया। यीशु केड़ा जीवन तानू देना है? बहुतायत दा। इन्हां नू मिल गया है। हालेलुया। किड्डी दूरों चल के आए सवेर दे, दसो थोड़ा। मैं जिद्दां ना बहुत परेशान सी, यानी कि मेरे कीमो इन्नियां ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀਆਂ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾਓ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਪਾਵਰ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਲੈਸ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਜੀਸਸ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਏ। ਟੱਚ ਦ ਨੇਮ ਜੀਸਸ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। Bless in the name Jesus, ਯਿਸੂ ਨਾਮ। Bless in the name Jesus, ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਲੱਕ ਦਰਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫੜੋ ਫੜੋ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੱਕ ਫੜੋ ਬਈ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਜਾਏ। Shut out, free in the name Jesus, shut out, shut out। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਇਧਰ ਕਰ, ਇਧਰ ਕਰ, श्वास ना कर, बोलो कुछ नहीं है। देख, चक्कर लें दोनों, पर गया? हाँ जी। पक्का? चल बहुत बरकत हो चुका। जाओ जल्दी करो, जल्दी। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਦਰਦ। फटो फटो जल्दी, नो के बच्चों विश्वास कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं ना लोग? ठीक है, यीशु नाम च खुदाबंद अगे पीछे जो भी दर्द यीशु नाम च खत्म हो जाए। शट आउट। रीढ़ दी हड्डी च सट लगी, दर्द जाए 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 जाए, शट फ्री इन द नेम जीसस। चलो चलो, चुको चुको चुको। देखो इथे देखो, फटाफट देखो, दर्द कितना गया। देखो शाबाश, जो करना करके देखो। गल बनी कि नहीं अजय? बिल्कुल पक्का। चलो चलो, शाबाश शाबाश। आओ, L4 डिस्क चुकिया नहीं जाता, तेनों भी सैट कहता रहोगे। किन्ने बंदे डिस्कां दे लत्तां दी प्रॉब्लम दे इत्थे बैठे ही ते ढिले जे बैठे ही, पता नहीं भी परमेश्वर आज बड़ा बड़ा कुछ कर सकदा तुहाडे लिए। तेनों विश्वास ही नहीं लोग हील हो रहे? यस है। यस। इधर मेरी तरफ देख, हुण तेरे ते मैं हाथ भी नहीं रखना ते तू चंगा हो जाना भाई, पक्का शब्द नाल ही। चल चुक, यीशु नाम चुक चुक। मैं डरना नहीं। बाप रे, मैं चुक क्यों कह रहा सी? मैं देखना चाहता ही कितनी प्रॉब्लम च बंदा। देखो नाल ही दर्द ही दर्द शुरू हो गई ना। चुकदे सारी। इधर देखो, जा रही है यीशु मसीह के नाम च दर्द जाए। यीशु मसीह के नाम च दर्द जाए। L4-5 मन का दबा गया, यीशु नाम च हील हो जाए। शट फ्री। पहले डरना नहीं, पहले इतना करना शुरू कर, श्वास नाल। ठीक है, हो रहा है सही? ये हो रहा है? ओके। हुन अगे चुक, श्वास ने थोड़ा तू पीछे, थोड़ा बंदे ने देखन दो, सारे थोड़ा पीछे पीछे। आगे मेरी तरफ देख, अभी ऊपर जा, फिर दो श्वास कर। थैंक यू परमेश्वर। L4 मन का दब गया, यीशु नाम च हील है। फिर चुक, देख चुक, ऊपर जा, थले जा, ऊपर थले जा। दर्द है कौन? दर्द है? दर्द है नहीं, पर मांस होने आ। वो छड़ दे दो, दर्द गया ना दर्द है। तो बस फिर हो गया तेरे लिए यीशु नाम च। हालेलुया। जीसस, शट नेम जीसस। चलो आज तो अपनी प्रार्थना करनी जेडी मैं तेनू खास प्रार्थना दसी। रोज प्रभु मैं नहीं जानदा मैं किथे अगे पिछे आ, मैनू बुद्धि दे, रास्ता दे, ताकि मैं सारी चीज़ां राइट करा। हाँ, वो फैमिली पूरी बॉडी च की तू तो बड़ी प्रभु दी प्रेमी है। मैं तेनू आत्मा च देखा, जा तो हील हो रही है, बस ज्ञान दी कमी के कारण प्रॉब्लम सी। शट आउट, शट आउट, शट आउट, शट आउट। देख लो कितना मर्जी मन चंगा हो, ज्ञान सही ना साडे अंदर रहना चाहिए, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਟ ਉਠਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਤ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਮਾਤ ਕੀ ਚਾਹੇ
सारी दर्दां जकड़न दुष्ट का गंदा प्रभाव जाए शट आउट फ्री शट आउट फ्री चलो बोलो आमीन इधर देखो मेरी तरफ इधर देखो मेरी तरफ प्रभु ने छू लिया था अपनी सामर्थ्य ने पड़ता इधर देखो देखो सीधे 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 पूरे स्टैंड स्टैंड पूरे अब देखो देखो चेक करो हालेलुया बैठो उठो देखो उनको जकड़े नहीं है खत्म कितने साल में मर रही है था 2 साल हो गए बहुत परेशान ओहो रो रही है इससे करके देखो ये डिलीवरेंस है अभी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਓ ਜਾਓ ਆਜ਼ਾदेश आमीन ब्लेस द नेम जीसस यीशु आमीन जाओ हो गया हालेलुया चलो बोलो गोडे दी क्या गोडे तेरे एक भी की ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ मूव नहीं करता सही तरह नहीं करता ए वाला की विश्वास कर दिया जी किने चिर तो प्रभु तो विश्वास कर दिए हो है आज की विश्वास कर दिए पक्का चल रिसीव कर पावर दुर्बलता जाए कर जीसस यीशु मसीह के नाम बीमारी जाए शट फ्री शट ऐसा करो अच्छे तरीके से करके दे जो नहीं होता है आज जुत्ती ला अपनी जुत्ती ला इधर ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਚੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਭਜਣਾ ਹੁੰਦਾ बोलो चल बैठ उठ के देख सही है पक्का जा ही लोगी हालेलुया आओ यीशु नाम से